student. I am Kinnari Dave. Student, I Kinnari Dave. Today in the part 3 of Standard 12, Chapter 6 Chemistry, General Principles and Process of Isolation of Elements, will explain you about the concentration of ore. Before going to our topic, student, we'll just revise the which we have studied in the previous lectures. Student, in this chapter, the 3 or 4 main definitions are there. In that definition, first of all, what is the minerals? So, mineral is a substance in which metal is present either in native state or in combined state. The second definition for this, it is ore. What is ore, student? So ore is the mineral from which the metal can be economically and conveniently extracted. And the third one, that is gangue particles or matrix. Gangue particle or matrix is the non-metallic impurities present in the ore. And student, finally, to extract the metal from its ore in the profitable manner, that is called metallurgy. So ये सारी definitions हमें याद रखने की है. Now, as our today's topic is concentration of ore. Concentration को हम dressing और benefaction भी कह सकते हैं. So before going to the steps for the concentration, the crushing or grinding of the ore is necessary. What is the meaning of crushing, student? The process in which the size of the large lump is to be converted into the small pieces, followed by finely ground material, and that is done by using crushers and grinders. मीन स्टूडेंट बहुत बड़े बड़े लंप जो यहाँ पर आपको स्लाइड में आप देख सकते हो स्टूडेंट, ये आपके पास में जो इतने बड़े ओर है, तो ये ओर बहुत बिगर साइज में हमें अर्थ क्रस्ट में से मिलता है. सो स्टूडेंट, इसके ऊपर प्रोसीजर करना इट इज वेरी डिफिकल्ट. सो द फर्स्ट स्टेप टू break down this bigger size into the small size, and that is known as the crushing and grinding. So student, the first method for concentration of ore, that is known as the gravity separation, or we can say that hydraulic washing. Student, what is the meaning of hydro? Hydro means, as you know, the water. Hydro means water. So hydraulic washing का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? हमें जैसे कार वगैरह आप लोग ने देखा है, कहीं हम कार वॉशिंग के लिए देते हैं, तो द पीपल आर forcefully throw the water to the parts of the car or a vehicle. जेट स्प्रे लगा के उसमें से फोर्सफुली कार के पार्ट्स जो है उसे वॉश करके देते हैं. सो हियर ऑल्सो द सेम प्रिंसिपल वी आर यूजिंग, और जिसकी वजह से कार के नीचे चिपकी हुई जो भी धूल मिट्टी है वो रैन हो जाती है, वॉश्ड हो जाती है और व्हीकल हमारा क्लीन हो जाता है. सो फॉर द हाइड्रोलिक
washing, student, the principle is the density difference. Density difference means what, student? गैंग पार्टिकल एंड जो और है वो दोनों के बीच में डेंसिटी का डिफरेंस होना जरूरी है. So this method is based on the difference in density of the ore and gangue particles. First of all, इसके लिए क्या किया जाता है student? The powder ore with gangue particle is introduced in the running stream of water. एक बहुत फोर्सफुली बहने वाली एक जगह में जहां से स्लोप में से पानी का फ्लो फोर्सफुली किया जाता है एंड उसके साथ में lighter impurity particles wash off with the water while ore is heavier than the gangue particles, so it settle down at the bottom. डेंसिटी डिफरेंस की बात हो रही है स्टूडेंट. सो जो इम्प्योरिटी है, इम्प्योरिटी के डिफरेंस में अगर हम देखें तो इम्प्योरिटी की डेंसिटी लेस है एज देन द गैंग पार्टिकल. सो इम्प्योरिटी पानी के फोर्स के साथ में बह जाती है while the high density pure particles is settled down at the bottom. And generally oxides and carbonate ore are concentrated by this method. Oxides and carbonate ore are concentrated by this method. Here I have written some of the example for the same. Student, what is the name of this ore? Fe2O3, hematite. Oxides of tin, lead and iron can be concentrated by hydraulic washing method. That next method for the concentration of ore is known as magnetic separation. Student, as you know, what is the characteristics of magnet? What is the characteristics of magnet, student? Good. Magnet is having the magnetic property means it attracts the things which is made up of iron. So यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही प्रिंसिपल का यूज किया जाता है. In this separation, any of the gangue particle or ore particle, it is having the magnetic property. किसी एक के पास में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का होना जरूरी है. अब यहाँ क्या होता है स्टूडेंट वो देखते हैं. ये पिक्चर में आप देख सकते हो, ये एक कन्वेयर बेल्ट है. ये बेल्ट के एक साइड में मैग्नेट लगा हुआ है और ये जो कन्वेयर बेल्ट है वो कंटिन्यूअसली इन मूविंग होता है. यहाँ ऊपर से हम क्रश्ड एंड ग्राइंड ओर को डालते हैं. जैसे ही ये ग्राइंड ओर कन्वेयर बेल्ट के ऊपर आएगी वो रोलर होना शुरू होगी. जैसे वो मैग्नेट के एरियाज में आते हैं स्टूडेंट, तो उसी तरह से जिसके पास में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो मैग्नेट के साथ के चिपक जाएगा और जिसके पास में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है वो थोड़ा सा दूर जाके गिरेगा और जिसे हम कलेक्ट कर सकते हैं. स्टूडेंट, कन्वेयर बेल्ट आप लोग ने शायद से देखा ही होगा. वो जनरली एयरपोर्ट पे जो लगेज आता है वो लगेज के लिए जो बड़ा सा बेल्ट होता है दैट इज द कन्वेयर बेल्ट. वो काफी बड़ी साइज का होता है बट हियर इट इज with the small size machinery and in that conveyor belt is stick. So
Magnetic separation, ore and gangue are separated if only one of them is having the magnetic property. And generally, as you know, so this process is very much useful for the ore of iron. Now the third and very important method on the basis of concentration of ore for exam purpose. एग्जाम के लिए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड है जनरली वो वन और द अदर ऑल्टरनेट ईयर में पूछा जाता है, दैट इज फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रोथ? फ्रोथ का मतलब होता है स्टूडेंट झाग. आप लोग ने देखा है जब साबुन का पानी हम बनाते हैं तो ऊपर झाग क्रिएट होता है. जब आप वॉशिंग पाउडर को पानी की डोल के अंदर बकेट में डालते हो तो वो बकेट में आपको झाग मिलता है जब उसको फेंटते हो तब. और दूसरा एक अगर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं तो उसी तरह से वो जो फ्रोथ वो साबुन बनता है जिससे आप उसमें से बबल्स बना के जब छोटे थे तब खेलते होंगे शायद से. So this method, it is the froth flotation method. And here in this method the main principle is difference in wetting properties. वेटिंग प्रॉपर्टीज किसकी देखनी है स्टूडेंट? यहाँ हमें द वेटिंग प्रॉपर्टीज ऑफ गैंग एंड पोर पार्टिकल्स. वेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ गैंग एंड ओर पार्टिकल्स. तो इसमें ऐसा होता है कि कोई एक सब्सटेंस जो है वो पर्टिकुलर रिएजेंट से गीला नहीं होता है और दूसरा जो है वो गीला हो जाता है. तो इसीलिए हमें यहाँ वेटिंग प्रॉपर्टी का ध्यान रखना है. एंड जनरली दिस इज यूजफुल फॉर द सल्फाइड ओर. ये सल्फाइड ओर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है. अब ये किया कैसे जाता है स्टूडेंट्स, पहले हम वो समझ लेते हैं. यहाँ पर ये जो मैंने आपको पिक्चर दिखाया है स्टूडेंट, दिस पिक्चर इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक ऑल्सो. सो व्हाट इज टू बी डन फॉर दिस प्रोसेस? मैंने जैसे आपको बताया कि आपको झाग बनाना है. अब झाग बनाने के लिए क्या क्या करेंगे हम? तो ये एक जो कंटेनर लिया है, ये कंटेनर में यहाँ से एयर पसार हो सके ऐसी अरेंजमेंट की हुई है. नीचे यहाँ पर वो जो एयर पसार होती है उसकी मूवमेंट के लिए थोड़ा सा व्हील जैसा लगा हुआ है. मतलब इसको हम कंसिडर कर सकते हैं हम घर के अंदर जो बटर बनाने के लिए छाछ और बटर को अलग करने के लिए हम यूज करते हैं स्टूडेंट. जनरली मिक्सचर से करते हो, अभी तो ग्राइंडर का यूज करते हैं, पर आपने फिर भी वो वलोणी जिससे हम उसको घुमाते हैं वो देखा होगा. अब यहाँ भी वही करना है, ऊपर से एयर पसार करनी है. यहाँ जो आपके पास में है वो जब एयर अंदर से पसार होती है और ये घूमता है तब इसके अंदर रखा हुआ हमारा ओर पार्टिकल जिसमें हमने साथ साथ में पाइन ऑयल डाला है या तो टर्पेंटाइल डाला है, और उससे क्या होता है कि हमारी ओर जो है वो वेट हो जाती है और फिर यहाँ झाग बन के ऊपर आ जाता है. और ये फ्रोथ को हम सेपरेट करके अलग कंटेनर में लेंगे और उसकी वजह से उसमें से हमें सल्फाइड जो है वो अलग मिल जाता है. सो स्टूडेंट, अब हम जाते हैं उसको किस तरह से आपको याद रखना है उसके लिए. So froth flotation process
is generally, as I said, it is for the sulfide ore, and the wetting property of gangue particle and ore किसके साथ में? तो वाटर के साथ में एक सॉल्यूबल है और एक है वो ऑयल के साथ में वेट हो सकता है. So usually ore particle are making as aerophilic and gangue particle are as aerophobic. So by using the different reagent, दो different reagent का use करके हम gangue particle को aerophobic बना सकते हैं. और उसकी वजह से क्या होता है? वो एयर अंदर डालने से जो हमारा और पार्टिकल जो एरोफिलिक है वो सरफेस के ऊपर, कंटेनर की सरफेस के ऊपर आ जाता है. So ore particle is raised to the surface along with the bubbles and collected at the surface, whereas gangue particles are wetted and settle down in the bottom of the tank. स्टूडेंट, मैंने इसीलिए आपको बटर और छाछ का एग्जाम्पल, बटर और बटर मिल्क का एग्जाम्पल दिया. एज यू नो बटर मिल्क इट इज अ लाइट एंड बटर. सो बटर मिल्क में से बटर जो है वो पूरा सेपरेट हो जाता है. किस तरह से? तो जब हम उसको एयर देके घुमाते हैं तब. तो वहां पर से हम जैसे बटर को अलग कर देते हैं उसी तरह से यहाँ ऊपर आया हुआ फ्रोथ है उसमें से हम सल्फाइड ओर को सेपरेट कर सकते हैं. एंड दैट इज reagent used for the frothing agent that are generally pine oil. हम किस किस का यूज करते हैं स्टूडेंट्स? पाइन ऑयल का यूज करते हैं, क्योंकि पाइन ऑयल जो है वो सल्फाइड ओर को वेट करता है, गीला करता है, जबकि गैंग पार्टिकल्स जो है उससे पानी से गीला हो जाता है. तो यहाँ पर ये इसीलिए हम यूज करते हैं क्योंकि मोस्टली जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो ओर की साइज बड़ी होने की वजह से वो हाइड्रेशन एंथैल्पी उसकी कम होती है पानी से. होप सो स्टूडेंट्स यू विल अंडरस्टैंड दिस क्लियरली. तो कौन कौन से रिएजेंट है जिसको हम यूज करते हैं इसके अंदर? नेम द सब्सटेंस विच इज यूज्ड टू कलेक्ट द सल्फाइड फ्रॉम द फ्रोथ. फ्रोथ में से सल्फाइड को कलेक्ट करने के लिए क्या होना चाहिए मेरे पास में? तो उसके लिए हम डालते हैं पोटाशियम इथाइल जेंथेट. पोटाशियम इथाइल जेंथेट जो है या तो इथाइल जेंथेट, दोनों में से कोई भी एक को हम डाल सकते हैं एज अ कलेक्टर. दैट इज नोन एज कलेक्टर. अब फ्रोथ बनाने के लिए जैसे साबुन डालते हैं पानी के अंदर तभी जाके झाग क्रिएट होता है. तो यहाँ झाग बनाने के लिए फ्रोथिंग एजेंट हम क्या डालते हैं? तो दैट इज पाइन ऑयल. एंड एक्टिवेटर, उसको और ज्यादा एक्टिव करने के लिए हम डालते हैं कॉपर सल्फेट. एक्टिवेटर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? कि जब हम थोड़ी देर के बाद देखते हैं तो वो झाग जो है साबुन का वो खत्म हो जाता है. तो एक्टिवेटर डालने से वो लंबे समय तक झाग बना रहता है. तो दैट वी आर यूजिंग कॉपर सल्फेट. एंड द डिप्रेसेंट, डिप्रेसेंट का यूज इसलिए किया जाता है कि कहीं पर कोई दो सल्फाइड और कंबाइन है तो वो दो सल्फाइड और को सेपरेट करने के लिए हम उसके अंदर डालते हैं डिप्रेसेंट. जैसे हमारे पास में दो सल्फाइड और है स्टूडेंट, एक है PbS और एक है ZnS. तो सोडियम साइनाइड या तो सोडियम कार्बोनेट जैसा सब्सटेंस अगर हम फ्रोथ में डालते हैं तो सोडियम साइनाइड जो है वो लीड सल्फाइड के साथ में रिएक्शन नहीं बताता है और फिर यहाँ हमें
सोडियम टेट्रासाइनोसिंथेट वो मिलता है एज अ फ्रूट. So hope so this fruit flotation method you are very much clear about that difference in gangue and ore particles wetting property, generally useful for the sulfide ore of copper, zinc, lead and iron. To make the ore wet, we are adding pine oil and gangue particles are become wet by water. In this fruit flotation method, as I discussed, the fruit is on the surface and gangue particle is settled down at the bottom. So here ZNS और PBS की अगर और हमारे पास में combine है, so we are adding NaCN as a depressant and this NaCN does not show reaction with the ZNS. स्टूडेंट यहाँ पर मैंने आपको बहुत सारी सल्फाइड और दिखाई है उसके नाम के साथ में. सो PBS मीन्स गैलेना, chalcopyrites means CuFeS2, spherite means ZNS, molybdenite MoS2, stibnite Sb2S3, arsenopyrite FeASS, bornite Cu5FeS4 and pyrite FeS2. स्टूडेंट जनरली इसके अंदर से ये एक गैलेना, कॉपर पाइराइट्स, जिंक ब्लेंड एंड आयरन पाइराइट्स वो इंपॉर्टेंट और है. Now the next method is a leaching process. Student, in leaching process, ore is more soluble in suitable reagent while the gangue is insoluble. यहाँ पर हमारा प्रिंसिपल जो है वो ore is soluble than the impurity and gangue particle is undissolved. मतलब यहाँ हमें वो देखना है कि जैसे एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम एंड लो ग्रेड कॉपर ऐसे जो ओर है वो ओर सुटेबल रिएजेंट डालने से इजीली वो सॉल्युबल हो जाती है और गैंग पार्टिकल जो है वो इनसॉल्युबल रहते हैं. स्टूडेंट बॉक्साइट एक्सट्रैक्शन मतलब जनरली हमने एल्यूमिनियम के लिए एल्यूमिनियम के लिए बॉक्साइट, क्रेओलाइट वो मेन ओर है उसकी, उसमें से हमें एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट करना है तो जनरली हम यूज करते हैं बॉक्साइट में से कंसंट्रेशन करते हैं बिकॉज एज वी नो बॉक्साइट is having the highest proportion of the alumina and the extraction of bauxite contain the impurities like silica, iron oxide and titanium dioxide. तो लीचिंग प्रोसेस फॉर बॉक्साइट और एक है बेयर प्रोसेस और दूसरा है हॉल हेरल्ड प्रोसेस. स्टूडेंट बेयर प्रोसेस जो है वो आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हो. हॉल हेरल्ड प्रोसेस जो है वो हम आगे जब एक्सट्रैक्शन के बाद में हम एल्यूमिना का एक्सट्रैक्शन सीखेंगे
तब मैं आपको इसका पूरा एक्सप्लेनेशन करूंगी। और लीचिंग प्रोसेस सिल्वर एंड गोल्ड जैसे नोबल धातु के लिए, नोबल मेटल के लिए भी यूज होता है, जिसमें सोडियम साइनाइड और पोटेशियम साइनाइड का यूज किया जाता है। यहाँ बेयर्स मेथड मैं आपको थोड़ा सा बता रही हूँ स्टूडेंट कि बेयर्स मेथड में हमारे पास में जो जनरली मेजर इम्प्योरिटी जो है वो है Fe2O3 means Fe as a gang particle which is fused with सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 के साथ में जो गैंग पार्टिकल हमारा Fe2O3 है वो सॉल्युबल हो जाता है। तो रिएक्शन आप देख सकते हो यहाँ पर Al2O3 प्लस NaOH। NaOH को स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं? व्हाट इज द नेम ऑफ NaOH? Very good student, that is known as caustic potash। तो NaOH को हम डालने से उसके साथ में हमें NaAlOH4 मतलब कि कॉस्टिक सोडा जब हम डालते हैं 473 से 530 केल्विन टेम्परेचर पे, तो यहाँ हमें मिलता है सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सी एल्यूमिनेट और ये सॉल्युबल है। अब जब ये सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सी एल्यूमिनेट का हम CO2 के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ हमें मिलता है Al2O3XH2O। तो Al2O3XH2O जो है वो है हमारी बॉक्साइट। अब ये बॉक्साइट का जब हम हीट करेंगे तो हीटिंग करने से हमें हाइड्रेटेड मतलब कि वाटर मॉलिक्यूल जो है वो सेपरेट हो जाते हैं। और एज आई सेड अर्लियर यहाँ पर हमारे पास में सिलिका, आयरन ऑक्साइड, टिटानियम ऑक्साइड जैसी इम्प्योरिटीज अवेलेबल है। सो दिस Fe2O3 react with silica and forms FeSiO3 which is known as slag। तो ये है बेयर्स मेथड फॉर द लीचिंग for bauxite। Next is Hall-Héroult method। Here in Hall-Héroult method, hematite is a major impurity and this ore is roasted by adding Na2CO3। बेयर्स मेथड में हमने यूज किया था कॉस्टिक सोडा मीन्स NaOH और यहाँ हम यूज कर रहे हैं सोडियम कार्बोनेट। Reaction here also you can see student, this bauxite Al2O3 2H2O when react with sodium carbonate you get NaAlO2 plus CO2 and plus 2H2O। Here also this is like Bayes method, it is soluble and then we get when it react with water and carbon dioxide we get AlOH thrice and again this sodium carbonate। तो ये प्रॉफिटेबल इसीलिए है कि यहाँ से मिला हुआ सोडियम कार्बोनेट यू कैन यूटिलाइज अगेन फॉर द स्टार्टिंग ऑफ द रोस्टिंग प्रोसेस। एंड ये जो एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्रोक्साइड जो मिला है AlOH थ्राइस उसको हम वाटर मॉलिक्यूल को सेपरेट करके प्योर एल्यूमिना मिल सकता है। So this is also the leaching process for alumina। And the last is leaching process for gold, silver and platinum like noble metal। Here as I said NaCN or KCN is used। So you can see the reaction student when Ag2S is react with sodium cyanide in presence of oxygen, then here what happens?
जो Ag है वो ट्रैप हो जाता है, मीन्स हियर यू विल गेट द कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, और ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जो है जिंक के साथ में आगे उसका रिएक्शन करवाते हैं. सो नाउ दिस जिंक इज ट्रैप इन दिस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और Ag को वो सेपरेट कर देता है. तो इसी तरह से यहाँ हमें प्योर मेटल मिल जाता है. दैट इज नोन एज द लीचिंग प्रोसेस. So leaching is a chemical method of concentration, selective dissolution of ore in strong reagent, whereas gangue particles are undissolved and get separated, and that is known as hydrometallurgy. स्टूडेंट, लीचिंग प्रोसेस के बारे में अभी आपको एकदम से क्लियर से अंडरस्टैंड हुआ होगा. सो लीचिंग प्रोसेस में सिल्वर एंड गोल्ड जो है उसे हम रिएक्शंस जो करते हैं जिंक के साथ में, तो दैट इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन से हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करके उसको फिर से रिकवर कर सकते हैं. मीन्स हियर दिस इज द oxidation reaction and then metal is recovered by displacement reaction. अगर सिल्वर और गोल्ड के साथ में लीड की इम्प्योरिटी है तो हमें इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग प्रोसेस का यूज करना पड़ेगा. स्टूडेंट, होप सो दिस इज वेरी क्लियर टू यू. इसके अंदर से फ्रूट फ्लोटेशन एंड लीचिंग मेथड को आप अच्छी तरह से रिएक्शन के साथ में याद कर दोगे. एंड इफ यू आर हैविंग एनी ऑफ द डाउट्स और एनी क्वेरीज, you can mail me in the following mail ID. Thank you.